بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت رواتب أبواب رحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ آیت کریمہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. لعلکم تتقون، کہ شاید تم اس کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو. تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے کہ جیسے ہم غیر رمضان کے علاوہ شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا تھا، نفس نے ہمیں جکڑا ہوا تھا، اور فتنہ دجال کا دور چل رہا ہے، اس دجالی دور نے ہمیں جکڑا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں شاید اس روزے کی وجہ سے تقوی حاصل ہو جائے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اب ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ وہ حدیث جو میں نے ابھی پہلے پڑھی، جس کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی شیاطین سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں نے آپ آگے دوسری پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ کے یہاں تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزے کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیت و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے غیر رمضان کے اندر ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں تھی تو ہم فلم بھی دیکھ رہے ہیں، گانا بھی سن رہے ہیں، ہم فحاشی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آنکھیں اپنی ٹھنڈی کر رہے ہیں، ہم اپنے کان سے مزے لے رہے ہیں، زبان سے مزے لے رہے ہیں، اور دیگر جتنی بھی برائیاں ہمارے اندر ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے اندر ہیں یہ روزے کے ذریعے ختم ہونی چاہیے. تو روزے کا مفہوم یہی ہے. امساک کس کا نام ہے؟ انصاف اسی چیز کا نام ہے. امساک اسی کو کہتے ہیں کہ تمام برائیوں سے رک جانا اور ان تمام اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا جو صفات اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ غیر رمضان کے علاوہ جو انسان کے اندر وہ برائیاں تھی جن برائیوں سے اللہ سے یہ بندہ دور تھا، اللہ سے کٹا ہوا تھا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی چھوٹ دیتے ہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے،
अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर फरमा रहे हैं कि मैं ये वाज़ेह एतबार से बता रहा हूँ कि अल्लाह का अहकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, शैतान को कैद कर दिया, जिन्नात को कैद कर दिया। अब क्यों अपनी आंखों से तुम गुनाह कर रहे हो? अब क्यों तुम अपने कानों से गीबत सुन रहे हो? अब क्यों तुम अपनी जुबान से बुराई कर रहे हो? क्यों दिल में बुग़्ज़ पाला हुआ तुमने? यहाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोजा रखते हुए भी बुरा कलाम और बुरे काम को न छोड़े तो बजुज़ भूखा रहने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ हाली अपने पेट को भूख में रख रहा है, बस वो सिर्फ ये कर रहा है कि बस अपने आप को भूखा रख रहा है, अपना मुंह बंद किया हुआ है उसने, इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है और कुछ हासिल ही नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जो शख्स रोजा रखते हुए भी बातिल कलाम को न छोड़े, बातिल काम को न छोड़े, तो मेरे जिम्मे उसका रोजा नहीं है, मुझे उसके रोजे की कोई परवाह नहीं है। वो तो अपने रोजे को बर्बाद कर रहा है, वो तो अपने आप को तबाह कर रहा है, हलाकत की तरफ लेके जा रहा है। जैसे याद रखना, जैसे रमजान मुबारक के महीने के अंदर जैसे एक नेकी अनगिनत अजर दिलाने वाली है, ऐसे एक बदी अनगिनत गुनाह और सवाब दिलाने वाली है। अगर हम इसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं, बुराई को, अगर हम फाहिशी को देखते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम उसके ऊपर फिल्में देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर हमने गलत नाच गाने देखे, सीरियल को देखा, ड्रामों को देखा, फाहिशी को देखा, मर्द और ख्वातीन हजरात जो भी मोबाइल के जरिए कोई बैठकर अगर मर्द औरतों को देख रहा है, औरत मर्दों को देख रही है, इनका रोजा नहीं है, ये तो भूखे रह रहे हैं, इनका बिल्कुल ये अमल बातिल है, ये बिल्कुल बेकार और लघु अमल है, इससे गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून का मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा का माना है कि रुक जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अरे इस चीज से रुकना चाहिए, हमारे अंदर नमाज की तरफ हम रागिब हो जाएं, कुरान की तरफ हम रागिब हो जाएं, हम अल्लाह के जिक्र की तरफ रागिब हो जाएं। हमें तो जिक्र करना चाहिए, हमें तो तस्बीहात करना चाहिए, रात दिन के अंदर नवाफिल तौबा इस्तिग़फार करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ गमख्वारी करनी चाहिए, भूखों को तो खाना खिलाना चाहिए, इफ्तार कराना चाहिए, इन चीजों के अंदर जुटना चाहिए। हम बस ये सोचें कि कैसे हमारे हाथ से, कैसे हमारी जुबान से, कैसे हमारी आंख से, कैसे हमारे कान से दूसरों को तकलीफ न पहुंचे, हम उनको राहत पहुंचाने वाले बन जाएं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई है, इंसानियत जाहिर हो, हैवानियत खत्म हो जाए। अगर इंसान शक्ल से, सूरत से जाहिर इंसान लग रहा है, मगर आंख से हैवानियत टपक रही है, जुबान से हैवानियत टपक रही है, कान से हैवानियत टपक रही है, दिमाग में हैवानियत है, दिल के अंदर हैवानियत है, तो याद रखो ये अमाल कुछ काम आने वाले नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कम से कम इंसान को, अगर वो जो शख्स गीबत कर रहा है, जो गीबत सुन रहा है, अगर जो बुराई बोल रहा है, बुराई देख रहा है, अगर ये काम कर रहा है, तो ये रोजा कैसा है जो रोजा इन जितनी भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों से उसे रोक नहीं रहा है। ये रोजा ही नहीं है, तो खेल तमाशा है, ये तो दिखलावा है। इसलिए आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने रोजों को खूब उम्दा और पुख्ता बनाएं। जैसे हम हर काम को हम दुनियावी एतबार से उम्दा और पुख्ता बनाते हैं, ऐसे ही रोजों को भी उम्दा और पुख्ता बनाना चाहिए, ताकि अल्लाह के ये यहाँ काबिल कबूल हो जाए, कि अल्लाह इनको रद्द न कर दे, भूखा प्यासा रहना रद्द न कर दे, कहीं फेंक न दे, इसको, इस अमल को दूर न कर दे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से ये ना कहे कि ये अमल मेरे काबिल कबूल नहीं है, ये मेरे शयान नहीं है, इसे दफा कर दो, इसे फेंक दो। ऐसा ना होना चाहिए कि अमल वो हो
जिस पे अल्लाह तबारक व तआला रश करे, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहे कि देखो मेरे बंदे ने भूखे प्यासे रहकर कैसे मुजाहिदा किया, जुबान को रोके रखा, बुराई नहीं बोली, बुराई से इसने अपनी जुबान को बचा लिया, जुबान से किसी को तकलीफ नहीं दी, आंख से किसी की बुराई नहीं की, गलत देखा नहीं, कान से गलत सुना नहीं, कान से गलत किसी की गीबत सुनी नहीं, और दिल में कोई गलत ख्यालात पाले नहीं इसने, और हाथों से कोई बुराई नहीं की, और कदम इसके ऐसी बुराई की तरफ चले नहीं। ये तो जुबान से कुरान पढ़ता रहा, आंखों से कुरान का दीदार करता रहा, कानों से कुरान सुनता रहा, और पूरे जिस्म के अतबार से ये इसने अपने अज़ा को उन आमाल के अंदर सर्फ किया। नमाज के अंदर इसने अपने आप को मसरूफ रखा, और जिक्र के अंदर इसने अपने आप को मसरूफ रखा, और तस्बीहात के अंदर मसरूफ रखा। शाम नमाज के बाद इसने 6 रकात नमाज अवाबीन पढ़ी, फिर इसने रात को तरावी पढ़ी, फिर इस शख्स ने रात के अंदर दीगर आमाल किए, और इसने तहज्जुद पढ़े, और इसने तस्बीहात पढ़ी, और इसने तौबा इस्तिगफार किया, और अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। एक एक गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला खत्म फरमा देते हैं। मगर हमने रोजा रखा, हम मोबाइल पकड़ कर बैठ के हमने मोबाइलों के ऊपर फाशी देखनी शुरू कर दी, और हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए लोगों में तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज कर रहा हूँ, लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी आए। मगर ये आया नहीं है, इसलिए हमें फिक्र करनी चाहिए कि आज 4 रमजान मुबारक है, तो आज भी हमारे अंदर ये चीज पैदा नहीं हो रही है। 4 रोजे रख कर भी हमें ये हया नहीं आ रही है, 4 तरावियां पढ़ कर भी, और ये 4 सहरियां खा कर भी, और रमजान मुबारक इतने अमाल करके भी, फिर भी हमें हमारी आंखों के अंदर हया पैदा न हो, हमारे कानों को गीबत से बचने के लिए ये चीज पैदा न हो, हमारी जुबान बुराई से न रुके, तो ये चीजें पैदा न हो। तो हमें गौर फिक्र करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारे अमाल कितने कमजोर हैं, कि आज शैतान बंद, तमाम चीजें वो ऐसी जो बिगाड़ की हैं वो सारी बंद है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीजों से बचाए और महफूज फरमाए।